आज हम लोग मुगल एरा देखेंगे। 16th, 17th एंड 18th सेंचुरी में ये सारे लग्जरियस क्लोथ इन्वेंशन मुगल पीरियड में हो चुके थे। बोथ मेंस एंड वुमेन्स वेयर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी। फाइबर्स, यहाँ पे कपड़े या फाइबर्स कौन कौन से थे वो है मसलिन एंड अदर फाइबर्स लाइक सिल्क, वेलवेट एंड ब्रोकेट। वेलवेट एंड ब्रोकेट भी इस समय भारत में आ चुके थे। अभी मेंस वेयर है जो हम लोग देख रहे हैं, जो है जामा, द मेन रॉयल ग्राफ ऑफ मुगल एम्परर। ये ओपनिंग इनर जो गाउन जैसा है वो है जामा, द टाइट स्लाइटली फिटेड फ्रॉक कोट with flare skirt up to the knee length fastened on the right side of the body। तो ये राइट साइड बॉडी पे बांधा जाता था और ये नी लेंथ तक रहता था इनर कोट। एंड ऊपर वाला था वो पटका बोला गया है, यूज टू कीप द jewels sewed around the waist of the jama। The patka is the type of frill or the belt that's made of fine fibers, which is a hand painted, printed or chogas। These are the embroidered long sleeve coat generally worn over jama and other garments. It is generally up to the knee length and open from the front। Pagdi or the turban, it was common attire of the Mughals and their subjects as it proclaimed their status। To give the turban to someone means to distinguish your power to them। On the other hand, the forcible removal of the turban was considered the misqualifying grace। Women, yeah, Mughal women wore a large variety of ornaments from head to toe। Costumes were chudidar, salwar, jiga, khadra, fareed, the parish। They all include the head ornament, anklet, and necklace। Headdress were worn by the Mughal women and were various styles। डिफरेंट स्टाइलिंग ऑफ या बहुत अलग अलग तरीके से पहने हुए पगड़ी सर पे मुगल वुमेन भी पहनते थे। एम्ब्रॉयडर्ड फुटवेयर विथ ऑर्नामेंटेड लेदरवेयर वोन। ये कुछ पिक्स है जो हम लोग को कपड़ों के बारे में जानकारी दे रही है। जैसे यहाँ पे टिश्यू यूज किया है या ट्रांसपेरेंट फैब्रिक उस वक्त मिलते थे। घाघरे के साथ है सारे लाछा, चोली, दुपट्टा। ज्वेलरी में बीट वर्क, कुंदन वर्क, ये सारे शुरू हो गए थे मुगल एरा में, स्टोन्स के स्पेशली। राजपूत, यहाँ पे 7th to 8th सेंचुरी राजपूत पीरियड था। मेन राजपूत मेल कॉस्ट्यूम, the aristocratic dresses, the court dress, which were include the angrakhi, pagdi, chudidar, pajama, and angrakha or rumembrum means कमरबंद और कमरून करके लिखा हुआ है, कमरबंद। Angrakhi is a short jacket. It is
and a long upper part of the garment, which they used to wear over the sleeveless, loose-fitted top. Royal robes of nobles of the Rajput or the royal people जो कोर्ट में प्रेजेंट रहते हैं वो लोग जामा शेरवानी एज एन अपर गारमेंट एंड सलवार चूड़ीदार पैजामा द पेयर ऑफ शेप ट्राउजर्स एज अ लोअर गारमेंट. यहाँ पे अपर गारमेंट एंड लोअर गारमेंट में आपका डिफरेंशिएट पूछा हुआ है कि अपर गारमेंट कौन से रह सकते हैं, तो आपका जामा एंड शेरवानी आ जाएगा. सलवार चूड़ीदार pajama will be the lower garment. Dhoti is also in tradition in that time and styles were different to wear it. यहाँ पे अलग अलग तरीके के धोती भी थी जो फैब्रिक सिल्क है, लिन, कॉटन, अकॉर्डिंग टू द कोस्ट ये सारी चीजें होती थी. Savata style of dhoti is prominent in the desert region and Silangi style were used. यहाँ पे डेजर्ट रीजन में राजपूत डेजर्ट मतलब राजस्थान के रॉयल किंग जो लोग थे वो किस तरीके की धोती पहनते थे. ये उनकी पगड़ियों के स्टाइल से टर्बन फेटा या जो भी बोलो, हर स्टाइल जो भी 9 पिक्चर्स है हर स्टाइल अलग अलग है. ये अंगरखी है, जैकेट ओपन जैकेट था, कमर बंद है जो ब्रॉड बेल्ट जो दिख रहा है आपको उसके साथ. ये जामा है राइट हैंड साइड पे और ये फ्रॉक जैसा फ्लेयर नी लेंथ फ्रॉक रहता था. चूड़ीदार स्लीव दिख रही है. शेरवानी, कुर्ता. धोती स्टाइल. Women wear the transparent fabric draped around their body, a sari wrapped over the whole body, and one of the ends sewn on the right shoulder. A lehenga related with the Rajasthani traditional dress on the occasion of Angreal. After marriage, Kanchli, kurti and unveiled were the main wrap of the woman. Young girls, छोटी लड़कियां पुतिया as an upper garment made of pure cotton fibers and tulkhali, a lower garment, a loose pajama. Widows and unmarried women पहनते थे पोल्का, a half sleeve with which ends at the waist. Ghagra as a voluminous gaudy skirt made in line satin. Line satin के साथ बना हुआ रहा हुआ है ये लाइन सैटिन है. पोल्का विडोज स्पेशली पहनते थे. कुछ पर्टिकुलर टिप
या प्रिंट्स है, मोटिव्स है, जो ब्लॉक प्रिंटिंग में भी यूज किए गए होंगे। ज्वेलरी कॉल्ड राखड़ी, द हेड ऑर्नामेंट, इसे हम लोग राखड़ी बोलते हैं। मिर्ची सुलिया, द ईयर रिंग, तलवाता, पत्या एंड अदा, ऑल इन नेकलेस। ये कुछ नाम है जो नेकलेस को ही, नेकलेस के नाम से राखड़ी, नथ और चूड़ा शोज द मैरिड वुमन स्टेटस। अगर आपके माथे पे राखड़ी नहीं है तो, जैसे मंगलसूत्र महाराष्ट्रियन, इसमें एक उसका अलग इम्पोर्टेंस है, वैसे ही राखड़ी राजस्थान या राजपूत एरा में वो उसका अलग इम्पोर्टेंस था। मैरिड वुमेन लोग जो पहनते थे, तो वो फुटवेयर इज सेम फॉर मेन एंड वुमेन एंड नेम ब्यूटी मेड ऑफ लेदर। यहाँ पे कैमल लेदर यूज हुआ है। तेवाता नेकलेस एंड पट्टिया नेकलेस। तो पट्टे जैसा जो है, पट्टिया करके बोला गया, जो ब्रॉड नेकलेस आप लोगों को दिख रहा हो उसे पट्टिया। और तवे, तेवाता मीन्स एक ट्यूबुलर शेप में, ब्रॉड शेप में पैटर्न है वो, जहाँ उसके बाद यहाँ से गले पे मोती की लट जो लगी हुई है। तो ये कुछ पैटर्न आपको राजपूत एरा में मिलता था। राखड़ी मीन्स ये सर के ऊपर का जो ऑर्नामेंट है या चूड़ा है। आधा मीन्स ये आध, इसे बोला गया है जो फ्लैट इस पे रखा हुआ है, ठीक है, मतलब गले पे चोकर या जो सबसे क्लोजेस्ट गले पे टाइट आप नेकलेस पहन सकते हो, वो नेकलेस है अध। ये चूड़ा है जो पंजाबी वेडिंग में, राजस्थान वेडिंग्स में पहना गया हुआ है। सेम पैटर्न अभी भी चल रहा है। फुटवेयर में आपको लेदर विथ एम्ब्रॉयडरी एंड मोजड़ी बोलो या जूती बोलो, जो लेदर के ऊपर मोती वर्क भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे द बिगनिंग ऑफ द ईस्टर्न फैशन फ्रॉम 1945 टू 60। इस एरा में हम लोग 1945 से अगर देखा जाए तो people have followed the western culture, started following the western culture। और जैसे इंडिपेंडेंस 47 में मिला था, उसके बाद भी काफी लोगों के लोगों का जो पहनावा था वो वेस्टर्न कल्चर के तरफ दिखा हम लोग को। जैसे नेहरू जो जैकेट था, तो वो उसमें मैड्रिन कॉलर, चाइनीज कॉलर जो लगी हुई है, और पॉकेट है वेस्ट कोट जैसा, शेरवानी के ऊपर पहन सकते हो नेहरू जैकेट। तो ये सारी शेरवानी बोल रही हूँ, कुर्ते के ऊपर पहन सकते हो। The traditional sherwani was adapted into a narrow jacket business suits, while women frequently wore the sari in the workplace। यहाँ पे काम करने के भी ऑफिस वेयर के दौर पे साड़ियाँ और नेहरू कोट या नेहरू जैकेट की जो कॉलर है उसको लेते हुए बाकी के गारमेंट पे स्टिच
मेकिंग शुरू हुई थी। तो ड्रिप ट्राई और द नायलॉन ओलॉन ड्रैक्ट्रॉन which could retain the shade that sheets after washing became immense popular. ये जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे उस टाइम पे 1945 to 60. Acrylic, polyester, triacetic, spandex were all introduced in 1950s. यहाँ 1950s में आपको ये सारे फैब्रिक वेल एस्टैब्लिश्ड और इन द मार्केट ये सारे फैब्रिक थे। ये जैसे साड़ी है, नेहरू जैकेट की जो कॉलर बोल रही, मैड्रीन कॉलर इसे बोलते हैं, तो ये कॉलर अभी भी चलती है। ये कुछ फैब्रिक है जो 1950s में पॉपुलर थे। स्पैंडेक्स, पॉलिएस्टर, शाइन, काफी शाइन, मतलब सरफेस टोटली ग्लिटर्ड और शाइन के साथ थी। स्पैंडेक्स इज अ सॉर्ट ऑफ इलास्टिसिटी रहती है वो फैब्रिक में जो बनता है, या आपके बहुत सारे डेनिम पे भी ये फैब्रिक यूज होता है मिक्स करके। जैसे कॉटन के साथ अगर स्पैंडेक्स हम लोग मिलाते हैं तो आपको स्ट्रेचेबल जीन्स या स्ट्रेचेबल ट्राउजर्स मिलते हैं। 1960s, in 1960s the feature of number of delivered ट्रेंड, यहाँ पे बहुत सारे फैशन ट्रेंड में थे। इवन जो अभी हम लोग पहनते हैं लेगिंग was also in fashion during 60s and 70s. It was a decade that broke many fashion traditions mirroring the social movements during the time. यहाँ पे फैशन में बहुत सारे चेंजेस या बहुत अलग अलग चीजें लोगों ने अपनाई थी, स्टार्टिंग फ्रॉम बोल्ड प्रिंट, लूज पैंट, एलिफेंट पैंट, देन बूट्स में अलग पैटर्न्स थे, सेम वाइट कलर शूज विद वाइट ट्राउजर। तो ये आपको जो भी फैशन लॉन्चेस होते हैं हम लोगों को फर्स्ट सोसाइटी में दिखते हैं मूवीज में, और the celebrities are the, we can say the movie celebrities are the fashion followers or the fashion makers. The designers were producing clothing more suitable for the young adults, which led to an increase in interest and sales. यहाँ पे डिजाइनिंग का जो, अब डिजाइनर्स लोग अपने कपड़ों पे काम करना शुरू किया था, डिजाइनर्स लोगों ने, तो ये एक काफी बड़ा मतलब एक स्टेप था फैशन इंडस्ट्री में कि दे वर यूज, मतलब डिजाइनिंग अगर किसी ने की है तो वो यंग या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए, या मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स इस तरह से रहते हैं कि दैट 4 years यू हैव टू लुक गुड, यू हैव टू लुक समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो टेंडेंसी रहती है इसको डिजाइनर्स लोगों ने ग्रैप किया था, मतलब पकड़ा था उस कमजोरी को कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लोगों की। Whatever the new designs are there, they were experimenting on the college or the young crowd of India. Main limitations were the Western fashion, such as the business suit. यहाँ पे business suits जो थे वेस्टर्न वेयर में ही गिना गया है अब तक। वो एक सिर्फ एक मतलब ऑफिस वेयर के सीमित था। This was adapted to India's hot tropical climate as a Nehru suit
a garment made from khadi that typically had a madrine collar and a patch pocket. Madrine collar and a patch pocket. Patch pocket means it is stitched above the shirt fabric. पैच रहता है, एक टुकड़ा जो चिपका हुआ है, पैच, तो उसको पैच पॉकेट बोला जाता है। तो शेप अलग हो सकता है, राउंड है, स्क्वायर है, नॉच पॉकेट है, बट पैच पॉकेट मीन्स शर्ट के फैब्रिक के ऊपर दूसरा फैब्रिक जब स्टिच होता है उसे हम लोग पैच पॉकेट बोलते हैं। ठीक है, खादी का कपड़ा काफी चलन में था उस वक्त, और नेहरू सूट या नेहरू जैकेट जो था, दैट वाज अ वेरी कंफर्टेबल वेयर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मतलब यहाँ का क्लाइमेट जिस तरह का है, इंडिया का गर्म है, तो उसके चलते वो कॉटन या खादी का कपड़ा विद इट वाज हाईली adapted with men's as well as women, मतलब दोनों पहनते हैं। आपको अभी तो दोनों पहनते हुए दिख जाएंगे। ये बिजनेस सूट मीन आपका वेस्ट कोट, टोटल कोट और टाई, ट्राउजर, ये 3 पीस जो सूट्स रहते हैं उसे हम लोग बिजनेस सूट बोलते हैं। मैड्रिन कॉलर, आपका स्टैंड कॉलर बोलो या चाइनीज कॉलर बोलते हैं, इसे हम लोग मैड्रिन कॉलर बोलते हैं। The women maintain traditional dress such as the घाघरा चोली, साड़ी and चूड़ीदार। चूड़ीदार, कुर्ता चूड़ीदार, तो साड़ी वो ट्रेडिशनल जो वेयर है, इंडियन वेयर, तो घाघरा चोली, साड़ीज एंड चूड़ीदार आर द 3 women. Saloni women began to incorporate modernist western trend. कुछ वुमेन लोगों ने वेस्टर्न ट्रेंड को अपनाना शुरू किया था, और जैसे पैड कॉम्बिनेशन, पैड मीन्स शॉर्ट लीव फैशन, जो फैशन बहुत कम वक्त चलता है उसे फैड बोला गया है फैशन टर्मिनोलॉजी में। तो मिनी skirts with the traditional sari, prompting the moral panic where conservative dominance, so called the hipster साड़ी। तो यहाँ पे स्कर्ट के ऊपर साड़ी पहनने का जो चलन था, या शॉर्ट साड़ी जो पहनते थे, वो एक हिपस्टर साड़ी करके बोला गया है उसे, शॉर्ट साड़ी। ये घाघरी, सलवार और ये साड़ी है। These sarees are almost 9 meters. मेंस का 1970s तक आते आते धोती, कुर्ता एंड शेरवानी वेयर द मेंस अटायर, और मेंस लोगों के कॉस्ट्यूम इस पे ही रहते थे। टर्बन वॉज 5 मीटर लॉन्ग, कीप द हेड कूल फ्रॉम द सन। टर्बन जितना बड़ा और जितना लंबा कपड़ा रहेगा उतना वो सर ढका हुआ रहता था, तो इस वजह से उनका सर एक ठंडा, मतलब सर पे धूप नहीं पड़ती थी। Soaked in cold water at night and dried in morning. Accessories for men were the homemade with necklace, headband, and bracelet, being made from all natural materials such as wood, hemp, flower,
leather, shell, stones, Indian beads, headband, floppy hat, and flowing scarf. So these were the 70s fashions. मतलब belt, leather, hat, stole, scarf, blue and beige safari jacket suits became popular. बेज कलर मीन्स ऑफ वाइट कलर को बेज कलर बोल सकते हैं, या सबसे लाइटेस्ट ब्राउन अगर है वो कलर हो सकता है, या डल येलो बोल सकते हो. द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉलीवुड फॉर द मेन. यहाँ पे बॉलीवुड वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग थिंग. अगर फैशन के रिलेटेड आपको चलना है, कौन सी चीजें फैशन में अगर देखना है, तो सबसे पहले हम लोग मूवी ही रेफर करते हैं. इवन अभी भी डिजाइनर्स लोग जो भी, अगर कोई एरा का रेफरेंस चाहिए तो नेट पे आप लोग मूवी देख सकते हो, पिक्चर्स देख सकते हो, तो उसी एरा से आपको रिलेटेड मिल जाएंगे. तो clothes pair the jacket, leather jacket, butterfly shirt collar. Butterfly shirt collar is the broadest collar. ठीक है. Cloth trousers with flares. Three-piece suits start to become popular. Three-piece suits जो थे वो पॉपुलरिटी बहुत गेन की है वो सूट्स ने. These are the three-piece suits. Okay. ओवर जैकेट रहता है, वेस्ट कोट रहेगा. ये अंदर वाला वेस्ट कोट आपका हाफ ही रहता है, टाइट, थोड़ा सा टाइटली फिटेड रहता है. एंड ओवरकोट जो है या ऊपर वाला जो ब्लेजर है वो ओपन नहीं, बटन्स रहते हैं, लेकिन यू कैन कीप दैट थिंग ओपन. क्लोथ यहाँ जैसे फ्लेयर्ड, चेक प्रिंट भी उस टाइम फेमस या चलन में थी. पैंट में एलिफेंट पैंट या बूट हेम पैंट बोलते हैं. बॉटम फुलनेस जहाँ पे दिख रही है आपको, ये बॉटम फुलनेस है, तो यहाँ इसे एलिफेंट पैंट भी बोलते हैं, बेल बॉटम पैंट भी बोलते हैं. स्ट्राइप, हाई वेस्ट था ट्राउजर्स पहले. वुमेन सलवार कमीज. सलवार looks like pajama bottom. Kameez is a long shirt, can be used with the dupatta. Churidar, tighter version of the salwar kameez, emphasized at the ankle and the knee. ये टाइट फिटेड अगर चूड़ीदार अगर पहनते हैं तो हमारा हाईलाइट नी एंड एंकल पार्ट होता है. ठीक है. दिस इज द एंकल पार्ट एंड दिस इज द नी. तो घाघरा चोली, स्कर्ट, घाघरा एंड द ब्लाउज इज द चोली. तो ये सारी चीजें हम लोग के फैशन इंडस्ट्री में हमको अगर देखने को मिली है तो वो मूवी के थ्रू ही देखने को मिला है. न्यू क्रिएशन, न्यू लुक. द इन्फ्लुएंस ऑफ बॉलीवुड फॉर वुमेन. Bollywood has an influence of fashion trend for the common Indians. 70s was the most influence. It's considered as a turning point for both female empowerment and clothing. So 1970s में फैशन एक हाइट पे था. सारी ब्लाउज डिजाइन, एक्सेसरी, ऑल ऑफ देम बिकेम बोल्डर और ब्रॉडर. ठीक है. मतलब एक बोल्ड लुक, साड़ी पहनने का तरीका या डिजाइनिंग
के थ्रू आप जिस तरह से प्रेजेंट हो रहे हो, तो वो एक बोल्डर फॉर्म में था. देयर वेर टू मेन स्टाइल, रेट्रो डिस्को. These two styles were prevailed during 70s. एक रेट्रो स्टाइल था जिसमें बॉबी प्रिंट, फ्लावर शर्ट, बोल्ड प्रिंट्स यूज हुए हैं. डिस्कोस में शाइन, शिमर, सिल्क, सैटिन, इस तरह के कपड़े यूज हुए हैं. सीक्वेंस फैब्रिक, the synthetic transparent sarees with low neck blouse with lace work, patterned cotton sarees, silk saree with heavy jewelry, chiffon saree with halter neck, high neck, noodle strip blouse. Noodle strip means पतले से strip के साथ भी ब्लाउज है. 5 yard साड़ी with small pallu. 5 yard साड़ी है तो पल्लू उसका छोटा रहता था. तो ये सारे ट्रेंड हम लोग ने मूवीज में भी सेम देखे हैं. लो नेक ब्लाउज, लो नेक मीन्स डीप नेक, सिल्क साड़ी विथ हेवी ज्वेलरी, halter neck blouses, high neck, noodle strip. (1980s) apparel trained to be very bright and vivid in appearance. Men's strappy sandals, fitted pants or denim, white pants and shoes. Pants भी white थे and shoes भी white थे. The plain colored sarees, women expressed an image of wealth and success through shiny costume jewelry such as the large set gold earrings, pierced necklace, and clothing discovered with sequins and the diamonds. Strap sandals, fitted pants and denim, white trouser with white shoes. So these were the 80s fashion, 70s fashion. Plain color sari, jewelry, contrast colors were used, pearls and diamonds. So these types of jewelry were used in 80s. In 90s, men's waistcoat, baggy pants, printed ties, dungarees, colorful denim, t-shirt, oversized shirt. तो ये डंगरी है. ओवरसाइज शर्ट मीन्स आपके शोल्डर लेंथ अगर यहाँ तक है, लेकिन इसकी शर्ट का शोल्डर यहाँ पे आ रहा है. तो दिस इज एन ओवरसाइज शर्ट. (90s) pan printed tie, t-shirt. Women traditional painting, traditional prints, जैसे बांधनी की साड़ी, फुल कलरफुल बांधनी साड़ी जो है. These are the traditional handicraft or handloom fabric. Handicrafts में आप जाता है बांधनी. Shoulder pads were used, especially जो मतलब कोट है
इवन अपने साड़ीज के ब्लाउजेस है या ड्रेस के ब्लाउजेस है, ड्रेस के शोल्डर्स है, वहाँ पे शोल्डर पैड यूज कर सकते हैं। स्केयर, स्कार्फ, चंकी ज्वेलरीज, एंकल हिल बूट्स फैशन में थे। टाइट फिटेड स्कर्ट, हेयर ब्रांड, बिग डेकोरेटिव बिंदी, इस तरह के बिंदी चलन में थे। ज्वेलरीज, ankle heel boots, '20s fashion, fitted shirt, fitted pant, denim, women's vintage, classy, designers clothing, short dresses 20s का फैशन है। मेंस लॉन्ग के लिए फिटेड शर्ट्स एंड फिटेड पैंट। ओके, तो ये कुछ 20s, 90s एंड 80s के फैशन का लुक आप लोगों से आज डिस्कस किया। तो यहाँ पे यही हम लोगों को जितनी भी स्लाइड्स आज देखी है, इससे यही पता चलता है कि ये सारी चीजें अगर हमको देखनी है, या डिजाइनर्स लोग अभी भी यही काम करते हैं, लेटेस्ट डिजाइन रैम्प पे कितने लोगों को बुला के दिखाओगे आप, टिकट, हॉल टिकट, ये सबका अरेंजमेंट रहता है। लेकिन मूवी ऐसी चीज है कि अगर आपका हीरो या हीरोइन पहन रही है वो डिजाइनिंग क्लोथिंग, आपके डिजाइन किए हुए कपड़े, तो एक ही साथ एक ही वक्त में ऑलमोस्ट पूरी दुनिया तक आपकी मूवी टेलीकास्ट होती है ऑन अ लार्ज वे। यू आर गेटिंग योर प्रोडक्ट seen by the people at a one time। और ठीक है, today I am ending the class here। Anyone having doubt? Okay then, thank you। सर एंड करूँ का?